تو اسے کہتے ہیں کلاسیفیکیشن آف انفلیشن آن دا بیسس آف پیس اور ریٹ آف چینج. تو اس حوالے سے جو پہلا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریپنگ یا مائلڈ جو ہے انفلیشن, اور یہ جو ہیں میتھیو اور ویبر جو ہیں WMATHEWR اور پھر ویبر WEBBER ویبر WEBBER, یہ انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ یہ اس کو کریپنگ ہے اور یہ کیا ہے مائلڈ انفلیشن ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 2% تک جو انفلیشن ہوتا ہے, اور یہ پرسسٹنٹلی مسلسل جو ہے قیمتوں میں جو ہے اضافہ ہے اوور ایکسٹینڈڈ پیریڈ جو ہیں, اس کو وہ کہتے ہیں انفلیشن ہے. اور یہ کیا ہے کریپنگ ہے. وہ کہتے ہیں یہ اکانومی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. جس طرح ہمارا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح 98.4 جو ہیں یا اس یہ جو ہیں یہ نارمل اس سے اوپر جائیں گے تو بخار ہلکا سا اگر ہوگا تو وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہوگا, لیکن جب 102 پہ جو ہے جاتا ہے اور اس سے جب ایکسیڈ کرتا ہے 3-4 پہ, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہاں سے پٹیاں جو ہے ٹھنڈی پٹیاں جو ہیں کریں تاکہ, تو یہ اکانومسٹ بھی کرتی ہیں. تو کہتے ہیں یہ اکانومی کے لیے, بعض کہتی ہیں 5% تک ایسے بھی ہیں, لیکن یہ ان کے نزدیک جو ہیں وہ, تو یہ جو ہے ان کا اس کو کہتے ہیں یہ جو آگے بھی دیکھیں گے. دوسری جو ہے قسم ہے کریپنگ کے بعد جو آن دا بیسس آف پیس جو ہے وہ واکنگ ہے. اس کا دوسرا نام ہے ٹروٹنگ اور ماڈریٹ انفلیشن ہے. اس کا ریٹ اگر جو ہے گروتھ ریٹ اگر 3 to 10% ہے, بعض کہتے ہیں 2 to 10. یہ اکانومسٹ تھوڑا ویریشن ہے اس میں, جس طرح بی پی کا بھی ہے یہ تھوڑا سا وہ اس میں بھی اتنی بعض ڈاکٹر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے پیشنٹ. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ کہتی ہیں کہ یہ جو واکنگ اور ٹروٹنگ یہ جو شروع ہو گیا ہے یہ جب یہ 2 سے 10% جو ہے ہوگا. اس کی رینج کیا ہے 2 سے 10%, لیکن بعض جو ہیں یہ 3 سے 10% بھی کہتی ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے, یہ کنٹروورسی تو ہے. نیکسٹ ہے رننگ انفلیشن. رننگ انفلیشن جو ہے اس کو کہتے ہیں جو پہلا ہے کریپنگ اور واکنگ یا ٹروٹنگ جو ہیں یا ماڈریٹ اور مائلڈ جو ہیں, یہ اس کو جو واکنگ جو ہیں یہ کیسے کہتے ہیں ڈبل ڈیجٹ, یعنی 10% سے 20% تک یہ ڈبل ڈیجٹ ہو گئے 1 and 0. تو 1 سے 9 تک جو ہے نا یہ سنگل ڈیجٹ جو ہیں. پچھلا جو میں نے کہا ہے کون سا ہے کریپنگ اینڈ جو ہے وہ آپ کا واکنگ, اور اس کے دوسرے نام بھی میں نے بتائے ہیں, وہ ذرا آپ جو لکھنا چاہتے ہیں. تو یہ رننگ انفلیشن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈینجرس ہے اس میں, اس لیے کہ لوگ جو ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مزید ریٹ بڑھیں گے, اور اس وجہ سے جو ہیں وہ ہولڈنگ بھی ہوتی ہے, اور وہ ہولڈنگ کو انفلیشن یا سیلرز انفلیشن وہ آگے چل کے پڑیں گے. تو یہ اکانومی کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوتا. یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے جس طرح آپ کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے نا اب 100 سے اوپر جاتا ہے تو پھر یہ آپ کی جو ہے علامات. تو یہ رننگ انفلیشن ہے. اس میں اب نیکسٹ جو سٹیج ہے وہ گیلپنگ انفلیشن. گیلپنگ انفلیشن وہ انفلیشن ہوتا ہے جب وہ, اب اس میں بھی تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے کنٹروورسی, 20 to 1000 جو ہے وہ کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں 20 to 100. تو یہ کون سا ہے یہ آپ کا ہے گیلپنگ. گیلپ جس طرح گھوڑا جو ہے بھاگتا ہے. اور نیکسٹ جو ہے اگر اس کو نہ روکا جائے تو یہ پھر ہوتا ہے ہائپر انفلیشن. ہائپر انفلیشن ہائپر انفلیشن جو ہے وہ کیا ہے, یہ وہ کہتے ہیں کہ 100 سے 1000 تک, 100 سے جب یہ 1000 تک جاتا ہے, اور وہ رائے یہ ہے کہ یہ 1000 سے جب جو ہے وہ کیا نام ہے یہ 1000 تک ہوتا ہے جو گیلپنگ. کہاں سے ہوتا ہے 20 سے 1000 تک وہ کہتی ہیں, اور دوسرے کیا کہتے ہیں 20 سے 100 تک ہوتا ہے. جو کہتے ہیں 1000 وہ کہتے ہیں مور دین 1000 اگر جو ہیں وہ گروتھ ریٹ ہے اگر, تو یہ ہائپر انفلیشن ہے. اور اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ جب 50% سے یہ کراس کرتا ہے نا تو یہ آگے تو بہت ہی گمبھیر ہے, اس میں پتہ ہی نہیں چلتا. اور وہ یہ اس کی مثالیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں, اور وہ کیا ہے 1920s میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے جرمنی میں یہ جو انفلیشن تھا 30,000 جو ہیں یہ تھا. کتنا تھا 30,000 جو تھا. اور اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ مثال دیں ہنگری کی 1945 یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے تقریباً اینڈ پہ, کہ یہ 15 گھنٹوں کے بعد ہنگری میں جو ہے وہ قیمتیں ڈبل ہو جاتی تھی. اور اس کا گروتھ ریٹ جو ہے ہنگری میں کیا تھا 46 میں 4.19
multiplied by 10 to raise power 16, ठीक है, 4.19 multiplied by 10 raise power 16, ये यानी 419,000 ट्रिलियन %, ये था, ये पोजीशन थी। और जर्मनी की जो है कहती हैं लोग कि जब लोग मजदूरी करते थे तो व्हील बारो, जिसे रेडी कहती हैं, जो इंसान एक ये हमारे यहाँ ईंटें वगैरह जो है इसमें जो है लेके जाती हैं मजदूर, इसके ऊपर अपने नोट डाल के फौरन जो ही उजरत मिलती थी मार्केट जाते थे कि कहीं अशिया की कीमतें मजीद ना बढ़ जाएं। ये इतनी अनसर्टेनिटी थी। और लेटेस्ट जो एग्जांपल जो है वेनेजुएला जो है ये अमेरिका के वो करीब ही है, इसमें ये जो इन्फ्लेशन रेट जो था 8.33997%, क्या है 8.33997%। तो ये जो सूरत हाल है, तो इस बेस पे जो करती हैं इकोनॉमिस्ट कहती हैं कि ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन से जो ही जो ऊपर जाती हैं ये डेंजरस होता है। बात कहते हैं कि 5% तक जो है ये गुड फॉर हेल्थ। जिस तरह हमारा शुगर लेवल है ये 80/120 या 70 या 110, ये जो है, या बीपी है हमारा 80/120 है, ये अगर है तो इसका मतलब है ठीक है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर और वो सेहत के लिए, इसी तरह इकानमी के लिए ये जो है चीज़ें जो है ये ख़तरनाक होती हैं। और इसी वजह से इकानमिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि अब वो क्या किया जाए। ग्रेट रिसेशन से भी इसी तरह निकले हैं, और दूसरी जो है कि अलग टॉपिक आ जाता है। अब दूसरी किस्म जो है ये इन्फ्लेशन की या अफरात-ए-ज़र की या महंगाई की क्या है, ये है हम जो करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड और द कवरेज, ये कितने एरिया में फैलता है और इसकी कवरेज कौन कौन सी चीज़ें जो है वो, तो इसको कहती हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। वो होता है कि माशियत के हर शोबे में होता है और सारी अशिया व खिदमात उसमें जो शामिल होती हैं, तमाम अशिया के रेट जो है उसमें, अशिया और खिदमात की जो है वो उसमें कंसिडर होती हैं। और हर सेक्टर, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, फॉरेन सेक्टर है, जो भी है वो उसमें शामिल होगा। इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। और ये हम जो है इसकी पैमाइश जो है इसीलिए जीडीपी डिवलेटर के थ्रू करती हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है। एक होता है स्पोरेडिक, ये किसी भी एक शोबे में किसी एक खास एरिया में वो उस शय की कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू कर देती हैं। मतलब हमारे यहाँ पोल्ट्री की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं अगर किसी इलाके में, बाज़ औक़ात वो मिर्चों की कीमतें जो हैं यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात सीमेंट की जो है वो किसी एक सेक्टर में या किसी एक एरिया में ऐसे होता है कि वो उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये स्पोरेडिक है, SPORADIC, स्पोरेडिक। तो ये इसी तरह हम एज के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन जो है इन्फ्लेशन की या महंगाई की जो अगर करेंगे, या टाइम और फेज ऑफ अक्रेंस, ये किस दौर में जो है हुआ है, किस पीरियड में हुआ है, इसकी बेस पे। मसलन वार टाइम में जो है इन्फ्लेशन होता है। रीज़न यह है जब वार होती है तो आपकी जितनी इंडस्ट्री है ना वो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है बनाने पे लगा देती हैं। वो जो गुड्स दूसरी जो हैं वो चीज़ों को, जो कपड़ा है और इस तरह की जो चीज़ें जो हैं या इंडस्ट्री जो है जो इतनी ज़रूरत नहीं होती तो जंगी सामान बनाने पे लग जाती हैं। तो उसकी वजह से इन चीज़ों की शार्टेज हो जाती है। जो दूसरी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं तो ये फिर रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस इन्फ्लेशन को कहते हैं वार टाइम इन्फ्लेशन। फिर जो होता है पोस्ट वार, चूँकि वार टाइम में जब आप कंट्रोल जो है नाफिज करते हैं, कीमतों की गवर्नमेंट जो है कहती है कीमतें ना बढ़ें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब इंडस्ट्री कौन सा सामान पैदा कर रही है, किधर जा रही है, ट्रांसपोर्ट भी एक खास वो साइड पे लग जाती है, तो ये कंट्रोल किया होता है। जब छोड़ती हैं तो वार के बाद हमेशा अशिया चूँकि गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया होता है, जिस तरह एक डॉक्टर ने दवा दे के तो बीबी को कंट्रोल किया होता है, तो जो ही वो उठाती हैं तो अगर वो मरीज़ सेहतयाब नहीं है हुआ तो वो ज़ाहिर सी बात है उसका बीपी जो है वो हाई हो जाएगा। तो यही होता है यहाँ पे ये इन्फ्लेशन की सूरत में कि पोस्ट वार जो है हमेशा ये इन्फ्लेशन जो है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी देखे मैंने अभी 1946 का जो जिक्र किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो जर्मनी का जिक्र किया है वो आप कोट कर सकते हैं। इसी तरह एक होता है पीस टाइम इन्फ्लेशन। पीस टाइम इन्फ्लेशन जब हालात पुरअमन होती हैं तो ये इन्फ्लेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स या फ्री मार्केट इकानमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती,
اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے انفلیشن جو ہوتا ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے یا سپلائی کم ہوگی، کسی وجہ سے جو قیمتیں بڑھتی ہیں، اسے کہتے ہیں پیس ٹائم انفلیشن کا مطلب ہے وین گورنمنٹ از ناٹ انٹرفیئر ان دا مارکیٹ بٹ پرائز لیول از رائزنگ، دس از کالڈ فری مارکیٹ پیس ٹائم انفلیشن. اور یہ بنیادی طور پہ کیوں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بہت زیادہ ایکسپینڈیچرز کرتی ہے بڑے پروجیکٹس پہ. گورنمنٹ ظاہر سی بات ہے آپٹیمسٹک ہوتی ہے، فیوچر پیس ٹائم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ خرچہ کرتی ہے، جسے جی ہم کہتے ہیں اکنامکس کی ٹرم میں C+I+Z. ایگریگیٹ ڈیمانڈ تو بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بنیادی تو. نیکسٹ جو ہے کلاسیفیکیشن جو ہے اس کی جو ہے جو قسمیں ہیں وہ کس بیس پہ کرتی ہیں؟ اسٹریٹجی اور گورنمنٹ پالیسی. اور وہ کیا ہے؟ اوپن انفلیشن. ابھی میں نے ذکر کیا اوپن انفلیشن پیس ٹائم کے انفلیشن سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہیں. تو پیس ٹائم جو ہے نا اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت زیادہ وہ خرچہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جب ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرتی، جس طرح مرضی ہے آپ جو ہے جس سیکٹر میں مرضی ہے جہاں آپ وہ کریں تو وہ دیکھا دیکھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو جو کہتے ہیں اوپن انفلیشن جو ہے اسے کہتے ہیں. اوپن انفلیشن سے مراد یہ ہے کہ جب گورنمنٹ مارکیٹ میں انٹرفیئر نہیں کر رہی کہ اس کی پرائس یہ ہو، فلاں کی یہ ہو، فلاں کی یہ ہو، پرائسز خود ہی ڈٹرمن کرتی ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیسس بھی ہوتی ہیں. تو یہ نیکسٹ ہے ریپریسڈ اور سپریسڈ انفلیشن. ریپریسڈ اور سپریسڈ انفلیشن جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ جب کنٹرول جو ہیں اس کے ہوتی ہیں، کنٹرول کیا ہوتی ہیں؟ پرائس کنٹرول کے. اوکے یہ چیز اس سے زیادہ آپ قیمت پہ نہیں بیچ سکتے، یا اوکے یہ جو ہے یا راشننگ کر دیتے ہیں کہ یہ چینی جو ہے نا ہر شخص کو مثلا جس طرح یہاں پہ یوٹیلٹی اسٹور 2 کلو سے زیادہ نہیں دینی، 5 کلو سے زیادہ نہیں دینی، آٹا نہیں. تو یہ سپریسڈ انفلیشن ہے، اس کو دبایا گیا ہے، یہ انفلیشن کو کنٹرول کیا گیا. یہ اسی طرح جس طرح جو بی پی کا جو ہے نا سوری کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے تو وہ. نیکسٹ ہے ہمارا کلاسیفیکیشن آن دا بیسس آف میئرز. کیا اقدامات کیے ہیں ان کی بیسس پہ جو ہیں جو انفلیشن جو ہے دی انفلیشن ٹیکس پلیس آن دا بیسس آف جو اس بیس پہ جو ہے نا وہ اقدامات سوری نہیں جو ہمارے جو پیمائش جو کہتی ہیں سوری جو افراط زر کی اس کی بیسس پہ ہم اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. اس میں ایک بڑی پاپولر آج کل ٹرم یہ یوز ہوتی ہے پاکستان میں، یہ ہے کور انفلیشن. اس کا دوسرا نام ہے نان فوڈ نان انرجی. اس میں یہ جو کور انفلیشن ہوتا ہے یہ اشیاء کی قیمتیں جو ہیں چڑھتی ہیں جو نان فوڈ میں نہیں شامل ہوتی، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں بسکٹ ہے، روٹی ہے، دال دلیا چاول، یہ ساری چیزیں نان فوڈ. اور نان انرجی. انرجی جو ریزن یہ ہے کہ جو ہے فوڈ اور انرجی کی پرائسز فلیکچویشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بہت زیادہ فلیکچویشن وہ شو ہوتی ہے. فوڈ انفلیشن جو ہے اس میں فوڈ وہ شامل ہوتا ہے اور جو ہے یہ اس کی پرائسز کو دیکھا جاتا ہے. وہ آگے چل کے آئیں گے. وہ ایسا افراط زر جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں، اور یہ بنیادی طور پہ ہمارا جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے یہ اس میں شو ہوتا ہے، جو کہ ویکلی بیسس پہ پاکستان میں کہ دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے CPI کنزیومر پرائس انڈیکس جو منتھلی بیسس پہ ہوتا ہے، اس میں فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس بھی شامل ہوتی ہیں. وہ تھوڑا اس حوالے سے کمپریہنسو ہوتا ہے. تو یہ کور انفلیشن اس میں کیا ہے؟ نان فوڈ نان انرجی جو ہے اس کی پرائسز جو ہیں نا یہ نکال کے جو ہے جو کیلکولیٹ کی جاتی ہیں اس کو افراط زر جو اضافہ ہوتا ہے یعنی جو قیمتوں میں. اسی طرح ایسٹ انفلیشن، ایسٹ اثاثے. ایسٹ انفلیشن کے مثلا زمین ہے، کسی زمینیں ہیں، پلاٹ ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہونا، یہ اثاثہ ہے آپ کا جو ہے نا. گاڑیاں ان کی قیمتوں میں جو ہے اضافہ ہونا شروع ہو جائے. آپ نے گولڈ رکھا اس کی جو ہے وہ یہ ایسی جو ان چیزوں میں جو اضافہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسٹ انفلیشن جو ہے یا اثاثوں میں جو ہے کی قیمتوں میں جو کا افراط زر ہے. اسی طرح سیکٹرز کے حساب سے جو ہیں ہم اس کی کلاسیفیکیشن کہتے ہیں. مثلا کرنسی انفلیشن. کرنسی انفلیشن سے مراد ہے جب گورنمنٹ کرنسی سے مراد جو ہیں کرنسی نوٹ کاغذ کے بنے ہوئے اور سکے جو ہیں اس میں جو ہے گورنمنٹ کسی وجہ سے بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں لوگ لے کے جاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، چیزیں وہی ہوتی ہیں. تو یہ افراط زر جو ہیں کرنسی انفلیشن ہوگا. اسی طرح کریڈٹ انفلیشن.
जो बैंक हमें कर्जा देती हैं, क्रेडिट देती हैं, वो अगर किसी वजह से बैंक ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर के बारे में, धड़ कर्जा दे जा रही हैं, लोग आके खर्च करेंगे उसको, अगर मकानों के लिए तो वो कोई ईंटें खरीदेगा, कोई सरिया खरीदेगा, डिमांड बढ़ेगी और कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, इसे कहते हैं क्रेडिट इन्फ्लेशन। इसी तरह प्रॉफिट इन्फ्लेशन। प्रॉफिट इन्फ्लेशन क्या है? जब कास्ट कम होती है और कास्ट कम होती है तो इसकी वजह से क्या है, कास्ट जब बढ़ती है तो क्या है, अगर कीमतें नहीं बढ़ती, कास्ट जब बढ़ती है तो कीमतें अगर नहीं बढ़ाई जाती तो फिर क्या होगा, मुनाफा कम हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, कास्ट बढ़ती है तो कीमतें बढ़ा देते हैं। क्यों? ज़्यादा जो उसी मुनाफे की लेवल पे भी रहने के लिए भी। तो इस तरह का कि जब कास्ट बढ़ती है तो कीमतें बढ़ा के पुराने मुनाफे लेवल पे रहने के लिए जो है ना, ये जो अफरात ज़र है या जो कीमतों में इजाफा हुआ है, इसको कहते हैं प्रॉफिट इन्फ्लेशन। और ये कौन से हैं? जो सरमायादार तबका जो है, मुनाफा कमाने वाला, मैन्युफैक्चरर्स और दूसरे जो हैं। इसी तरह होता है कमोडिटी इन्फ्लेशन। कमोडिटी इन्फ्लेशन क्या होता है? ये अजनास का उर्दू में होगा कि जब जितनी कास्ट में जो इजाफा हुआ है, जितनी कास्ट में इजाफा हुआ है उससे ज़्यादा कीमतों में इजाफा हो। जितनी कास्ट में इजाफा हुआ है उससे, अगर कास्ट में इजाफा 10% है किसी शय की, मटेरियल महंगा हो गया है और कीमतें जो हैं वो 15% के हिसाब से हों, तो ये कास्ट इन्फ्लेशन। इसी तरह है सेलर्स इन्फ्लेशन। सेलर क्या होता है? जो बेचने वाला है। फरोख्तखाने का इन्फ्लेशन क्या है? जिस हिसाब से शाह के रेट बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा चार्ज करें। मसलन 10% आटे की कीमत में इजाफा हुआ है तो वो 12% जो है चार्ज कर लें, क्योंकि वो महसूस नहीं होता कि हाँ जी जितनी चीज़ें बढ़ रही हैं, आज इतनी बढ़ गई, आज अंडे इतने थे, आज जो हैं, जिस तरह हमारे यहाँ होता है सीमेंट है, वो कहती हैं आज इतने रेट हो गए हैं, तो वो ज़्यादा बिलुमूम जो है वो चार्ज करती हैं। अगर सीमेंट का थैला 1000 रुपये का है, वो कहती हैं हाँ जी कल 900 का, 1000 रुपये का, वो 1100 चार्ज कर लेते हैं। तो ये इसी तरह है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जो सेंट्रल बैंक किसी मुल्क का जो है ना, वो ज़र को कंट्रोल, अगर वो ज़र को बढ़ाता है मार्केट में तो लोगों के पास रुपया पैसा जो है, इस तरह की पॉलिसी जो है वो अपने कमर्शियल बैंक वो कर्जे ज़्यादा देती हैं, और ये जो है ये लंबी बात है। तो उसकी वजह से जो है अफरात ज़र आएगा, वो मॉनेटरी इन्फ्लेशन होगा, चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी की हो। इसी तरह डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट के जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च करना। गवर्नमेंट की आमदनी है 100 बिलियन, खर्च करती है 120 बिलियन, तो 20 बिलियन जो है जो खर्च जो है वो, अगर किसी घराने की आमदनी है 1 लाख रुपये, वो खर्च कर रहा है 1,20,000, तो 20,000 जो है ये जो है कहाँ से पूरा करेंगे? तो इसके लिए कुछ कर्जे लेंगे, कोई बैंकों से लेंगे, कोई बाहर से लेंगे। तो ये जो है इसको फंड से वो जो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा खर्च करेंगे तो एग्री की डिमांड ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से जो अफरात ज़र आएगा। और ये डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जो है आजकल जो आ रहा है, उसमें एक फैक्टर इसका भी रोल है। इसी तरह बाद सेक्टर्स हैं, मतलब मेडिकल इन्फ्लेशन। मेडिकल इन्फ्लेशन क्या है कि अद्वियात की अशिया, डॉक्टर की फीस, जो डिफरेंट जो है पेशेंट के ट्रस्ट होती हैं, उनमें जो है इजाफे का नाम है मेडिकल। हाउसिंग इन्फ्लेशन, हाउसिंग यूनिट्स जो हैं, प्लाटों के जो है वो जो मकानों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाए तो इसे हम हाउसिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। एजुकेशन इन्फ्लेशन, बच्चे की किताबों में इजाफा, क्या नाम है, ट्यूशन फ़ी में इजाफा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें जो है वो इजाफा, हॉस्टल की जो चार्जेज है उनमें इजाफा, ये एजुकेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो इंटरेस्टिंग है, ये जाहिर सी बात है। लाइफस्टाइल आपका क्या है? बड़ा इजी है, कंफर्ट, मतलब लग्जरियस आइटम यूज़ करती हैं, नए मॉडल की कारें हैं, मोबाइल फ़ोन है, तो ये जो आएगा, जिस तरह पाकिस्तान में है कि कीमतें बढ़ रही हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये हमारा लाइफ स्टाइल है कि हर घर में 4-4 कारें जो हैं, और बड़े महंगे मोबाइल फ़ोन हर एक फ़र्द के पास हैं। तो ये इसी तरह टीवी सेट्स हैं, ये वगैरह वगैरह। होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब होलसेल मार्केट में जो है जो रेट्स में जो है इजाफा होता है। मसलन हम जो है, ये तो रिटेल में हम लेते हैं ना, तो होलसेल में जब होलसेल मार्केट जो है उसमें, तो ये बेसिकली जो मैंने कहा है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसी को कैलकुलेट करता है। पाकिस्तान के अंदर 5-6 जो हैं ये ग्रुप्स हैं। मसलन कपड़ा जो है ना, वो उसका इतने, अगर वो थानों के हिसाब से
जो बेचती हैं। इसी तरह टॉफ़ियाँ हैं वो कई जो है कार्टन के हिसाब से बेचती हैं, तो उसमें जो इजाफा होगा। इसी तरह रिटेल का मतलब है जो कम मिकदार में तादाद में जो बेचती हैं, जिस तरह बिस्किट का एक पैकेट बेचती हैं या सिगरेट बेचती हैं, डिबिया जो है बेचती हैं, तो ये रिटेल जो है, रिटेलर जिस तरह आपका होता है, इनकी कीमतों में जो इजाफा होता है ये हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मार्केट रेट जो होता है, बेसिकली होलसेल मार्केट रेट उस तरह का नहीं होता चूँकि, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हैं होलसेल और कंज्यूमर, पाकिस्तान में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हैं 12 जो हैं वो उसमें ग्रुप्स हैं। तो ये जो है ये डिस्कस करेंगे हम। तो ये इसको इन्फ्लेशन करती है। इसी तरह बहुत सारी और जो हैं हमारी इसकी अक़साम है किसकी, ये इन्फ्लेशन की, ये मिसलेनियस और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मसलन एक जो है वो है स्टैगफ्लेशन, और ये स्टैगफ्लेशन जो है वो क्या है, बिल्कुल इंटरव्यूज में पूछते हैं। स्टैगफ्लेशन जो है ये आयन IAIN आयन मैक्लियोड MACLEOD मैक्लियोड, ये बेसिकली ब्रिटिश जो है पॉलिटिशियन था। 1965 में इसने ये टर्म यूज़ की है, और ये 1970s में 71 टू और ये आगे जो हैं ये टर्म बड़ी पॉपुलर हुई, बहुत सारी ये इसे स्टैगफ्लेशन, स्टैग मीन्स स्टैगनेंट इकानमी, और फ्लेशन भी जो है इन्फ्लेशन उसको कहती हैं, ये टर्म यूज़ हुई। हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने तकरीर की थी, इसने पहले यूज़ की और बाद में इकोनॉमिस्ट ने कहा ये स्टैगफ्लेशन जो है आया, वो आयल एम्बार्गो और वो देखा है इसराइल और उसकी जो वार वगैरह वो अफेक्ट किया था ये 72 में शायद। तो स्टैगफ्लेशन से मुराद ये है जब कीमतें आपकी बढ़ रही हों, रियल GDP ग्रोथ आपका जो है वो क्या है, रियल GDP ग्रोथ रेट आपका कांस्टेंट हो या ज़ीरो हो जाए, यानी आपकी इकानमी ग्रो नहीं कर रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और साथ ही कीमतें जो हैं वो चढ़ रही हैं, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। यानी स्टैग इकानमी स्टैग है, साथ क्या है, स्टैगनेंट है, रुक गई है ग्रोथ, और साथ ही जो है कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये आयन मैक्लियोड ने जो है वो किया था। अब आगे एक किस्म आई है, इसमें मैं अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करूँगा और उम्मीद है आप अप्रिशिएट, और ये है हिडन इन्फ्लेशन। ये बेसिकली सबसे पहले हिडन इन्फ्लेशन में आपको बताता हूँ। हिडन इन्फ्लेशन जो है उससे मुराद ये है कि जब आप कीमतें वही चार्ज करें लेकिन शय की जो है वो क्वांटिटी या क्वालिटी डाउन कर दें, क्या है, कीमत वही चार्ज करें। और ये आजकल एक लतीफ़ा है पाकिस्तान में, जिस तरह हमारे मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब की वो जो हैं कोकोमा जो हैं वो कोकोमो जो है वो फैक्ट्री इनकी टॉफ़ियों की है, तो उन्होंने क्या किया कि कीमत वही रखी और 4 की बजाय 3 जो हैं वो शायद वो जो कर दी हैं। ये पॉपुलर जो हैं वो पाकिस्तान में आजकल है, जिससे ज़्यादा समझ आती है। तो ये हमारे यहाँ अगर वेट है किसी का, मसलन ये चिप्स हैं, अगर पहले 15 उसका ग्राम था और वो 50 रुपये का मिल रहा था, तो वो जो है वो कम करके तो कीमत वही रखेंगे, 12 ग्राम का कर देंगे। इसी तरह चाय जो हैं वो कंपनीज भी ये करती हैं कि वो 100 ग्राम से जो है ना वो 95 कर देती हैं। इस तरह ये कम करके कीमत वही तक वो कंपटीशन में रहें। लोगों को ये हिडन इसीलिए कहती हैं। तो ये सारा डियर व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुई ये, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सारा जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, लेकिन ये है कि मुझे, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा और पार्ट 3 इसका देखें अगर, तो आपकी मेहरबानी। और मुझे कमेंट भी करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये किस हद तक यूज़फुल रही। उम्मीद है कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।